स्टूडेंट्स चलो आज हम लोग ने पहले ऑलरेडी रेशियो और प्रपोर्शन कर लिया है। आज हम लोग उसका वही चैप्टर का थर्ड पार्ट करते हैं, दैट इज लोगैरिथम्स। दैट इज लोगैरिथम। जॉन नेपियर ने लोगैरिथम का कोई बेस रखा था एंड दैट वाज अ क्वाइट अ यूनिक कंसेप्ट वो जमाने में। मतलब वो जमाने वो लॉजिक वाज समथिंग लाइक दैट कि अज्यूम करो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं कि 5⁻³ is 125, right? So how to write this? This is known as, practically this is known as an exponential form, right? It is exponential. लेकिन अगर इससे ही मुझे logarithmic form में लिखना है, if I have to write in logarithmic form, right? तो मैं कैसे लिखूंगा? The pattern of writing was like this: it's log 125 to the base 5 is equal to 3. Right? It was to be spoken as this. मतलब कैसे बोला जाएगा? ऐसे बोला जाएगा log 125 to the base 5 is 3. Hence, अगर मुझे suppose इसे लिखना है तो suppose if I say a raised to x is equal to b, then log b to the base a is equal to x. The first concept is log को लिखना कैसे, how to convert an exponential form to a logarithmic form और logarithmic form to an exponential form. ये उसका पहला पार्ट होना चाहिए था। फिर जो प्रैक्टिकली एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है लेकिन एक अलग कंसेप्ट बना, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ लॉग टेबल। लेकिन लॉग टेबल जो हम लोग ने बनाया हुआ है उसका बेस दे हैव केप्ट फिक्स्ड, उसका बेस फिक्स्ड है एंड दैट इज नंबर 10। क्योंकि जो जॉन नेपियर ने जब बनाया था इट वाज सर्टेन लाइक दिस कि 10⁻² व्हाट शुड बी अ नंबर। मतलब अगर मैं बोलूं कि 10⁻² what is 2, ये आप नहीं बोल पाओगे। आप 10⁻² बड़ा नंबर बोल सकते हो लेकिन ये नहीं बोल सकते हो। तभी उसने ऐसे बोला कि अगर सपोज मैं log of 2 निकालूं to the base 10 तो क्या आंसर आएगा, और इसके लिए लॉग टेबल अगर आप देखोगे तो उसका आंसर आएगा 0.3010 which is not to be used। एक दो समय यूज हुआ है लेकिन आपको ये वैल्यू दिया होगा। You don't have to search from a log table, आपको दिया होगा इसलिए उसका टेंशन मत लेना। Now we come to the rules. मैं rules लिख रहा हूं, बराबर लिखना rules of logarithmic, right? I am writing the rules of logarithmic, right? मतलब log के लिए कौन से rules आपको याद रखना है। First is log a plus log b is equal to log a b, जिसका मैं एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं तो इट इज सर्टेन लाइक दिस: log 7 plus log 3 is log 21। प्लीज समझना log 10 will be the wrong answer। 7 plus 3 नहीं होगा, it will be 7 into 3 multiply by 3। Similarly, the second rule goes like this: log a minus log b is log a upon b। एग्जाम्पल अगर मैं सेम ऊपर को कंटिन्यू करूं कि log 7 minus log 3 is log 7 upon 3 and not log 4। Third, I come to log a raised to b is b log a। Example, log 2 raised to 5 is 5 log 2, right? तो totally अगर मैं rule wise जाऊं तो there are, the first rule is this is the first rule, this is the second rule and this one is the third rule। ये 3 रूल को पहले आपको समझना होगा फर्स्ट लेवल पर।
चलो आगे बढ़ते हैं. Now we come to next rule is what is log a to the base a? It is 1 because practically this is written as log a upon log a, which is 1. Even you can do this. Suppose log a to the base b can be written as log a upon log b. और मेहरबानी करके इसको log a upon log b करके log उड़ाना मत, ऐसा अलाउड नहीं है. बहुत जन log उड़ा देते. It's not allowed. Log a upon log b is the final answer. You cannot cancel log. हाँ, you can cancel the exact term. I can cancel log 5, but I cannot cancel log and log. Right? Some wise देखेंगे. बहुत important rule. Log 1 to the base anything is 0. One of the important rule. The reason is we know that a raised to any number is 1. Sorry, a raised to 0 is 1. मतलब example is कि अगर मैं समझो कि 5 raised to 0 करूं तो भी 1 होगा, 7 raised to 0 करूं तो भी 1 होगा. मतलब anything raised to 0. I can write anything raised to 0 is confirm 1. Hence by the rule log 1 to the base anything will be log 1 to the base anything will be, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल बन जाएगा, log 1 to the base anything will be 0. क्लियर हुआ? तो इतने रूल्स के बाद we can start basic sums. तो जिसके लिए हम लोग एक बार मॉड्यूल देखते हैं. मॉड्यूल में आई थिंक दिस इज पेज नंबर 132 ऑफ योर मॉड्यूल. हाँ, कुछ सम मैं मुझे पॉसिबल है तो मैं इधर ही कर देता हूँ. सपोज दिस इज log 6 प्लस log 5. नाउ log 6 plus log 5 obviously is log 6 into 5 which is log 30. So answer is log 30. Clear? पहला सम समझा? Now we come to the next page, page number 33. Now question is log 8 to the base 2. Now you say this log 8 to the base 2, right? ये क्वेश्चन है. चलिए काम करते हैं, उसके लिए नेक्स्ट पेज लेते हैं. हाँ, क्वेश्चन इज log 8 to the base 2. Now रूल समझना, अगर बेस में 2 है तो आप यहां भी ऐसा कुछ लिखो जो उसका बेस 2 हो. जैसे व्हाट इज 8? व्हाट इज 8? 8 इज नथिंग बट 2 क्यूब. तो आई कैन राइट हियर 2 क्यूब. क्लियर? नाउ एज पर द रूल्स जो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमने एक रूल देखा कि log a रेज टू b इज व्हाट? b log a. तो ये हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला 3 है ना वो आगे आ जाएगा. दिस बिकम्स 3 log 2 to the base 2. Now what is log 2 to the base 2 is 1. Hence the answer is 3. 3 into 1 is 3. So the answer to this will be 3. Clear? The answer to this will be 3. Okay? समझ में आया? Now we come to third question. Third question is log 32 to the base, sorry, upon 4. So this is written as what is log a upon b. So that can be written as log 32 minus log 4. Easy था, right? Next log 1 into 2 into 3. Right, log 1 into 2 into 3 क्या होगा? log 1 into sorry 2 into 3, that is log 1 into 2 into 3. Say what is log a into b into c, which is same as log a plus log b
plus log c. So this can be written as log 1 plus log 2 plus log 3. ये सबसे पहला ही रूल है जो हमने पढ़ा ना कि log a plus log b is log ab. तो log a plus log b plus log c is log abc. This one and the same. तो fourth का आंसर will be this one. Clear? यहां तक समझा? Now we come to fifth question. क्या है fifth question? Log 0.0001 to the base 0.1. मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, आप कोई भी सम हो, समझो ऐसा मैं कुछ भी सम दो, log b to the base a, आप इससे है ना इसके रेस टू पावर में आ जाना चाहिए. मतलब आपको b को a रेस टू समथिंग लिखना होगा. अगर आप यहां पहुंच गए ना तो आपका आंसर राइट ही जाएगा. तो एग्जांपल दे रहा हूं, समझो आप इसे चेंज नहीं कर सकते, आपको इसे चेंज नहीं करना. ठीक है, आपको ये ट्राई करना है कि 0.1 से क्या रेस टू करूं तो मुझे 0.0001 मिलेगा. कैसे पर ट्राई करो, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 कितनी बार करते हो तो आपको क्या मिलेगा. आप 4 बार करोगे तो आपका आंसर विल बी 0.0001. राइट, ट्राई एंड कैलसी, इट विल बी लाइक दिस. कैलसी पर ऐसे 0.1, कैलसी पर 0.1 इंटू प्रेस दिस, कितना हुआ 2 बार, मतलब एक बार प्रेस किया तो स्क्वायर हो गया, 2 बार प्रेस किया तो क्यूब हो गया, 3 बार प्रेस किया तो इट इज रेज टू 4. तो दिस विल बी 0.1 रेज टू 4, which will be 4 log 0.1 to the base 0.1, which is 4.1. Answer is 4. Clear? So answer for the next question will be 4. Clear हुआ? This completes your first 5 questions. आगे बढ़ते हैं. Coming to the sixth one. आप लोग मॉड्यूल सामने रखना. Coming to the sixth one. Sixth one is, क्या है sixth question? It is 2 log x. 2 log x is equal to what? 2 log x is equal to 4 log 3, right? 2 log x is equal to 4 log 3. Find the value of x. Now, suppose अगर मैं यहाँ log x को as it is रहने दूं, 4 log 3 upon 2 कर देता हूँ, मतलब 2 को शिफ्ट किया. This amounts to log x equals to, अगर मैं ये 4 और ये 2 को कैंसिल करूँ तो यहाँ 2 बचता है, which is 2 log 3. Now you cannot do this way. यहाँ तक आपने राइट किया है, लेकिन आप अभी क्या करोगे तो x कैसे पहुंचोगे. log x equals to log 3. ये जो 2 है ना, राइट, ये जो आपको 2 दिख रहा है, क्लियर, वो 2 को, मतलब ये जो आपका जो 2 दिख रहा है उसे आपको यहां नहीं रख सकते और उसे शिफ्ट करना होगा यहां. बिकॉज द रूल इज log b to the raised to a can be written as a log b. So in this way आपका 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा log x is equal to log 3 square which is 9. On comparing, आप कंपेयर कर सकते हो, comparing x equals to 9, right? Then the value of x is 9. Clear हुआ? This was the 6th question जो आपके सामने था. The answer is 9. Right? Now we come to 7th. 7th थोड़ा टफ लग सकता है क्योंकि रूट के फॉर्म है. Now we come to question number 7th. चलो, क्या था 7th question? log 64 to the base root. Now देखो, एक ऑप्शन है जिसको पता है कि रूट 2 कितनी बार करोगे तब जाके 64 आएगा. मेरे पास ऐसे मेथड्स है, चलो मैं 2 मेथड से बता देता हूं. सपोज फर्स्ट आई एम सॉल्विंग एक कंसेप्चुअल, समझना
you can write this 64 and you can write log root 2, that is allowed, क्योंकि मैंने बोला log a to the base b is log a upon log b. Now आपको ये सोचना होगा कि 64 और रूट 2 दोनों का कनेक्शन किसके साथ है. Now 64 is nothing but 2 raised to 6. आपको याद रखना होगा 2 raised to 1 is 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. इतना तो याद रहना होगा. जैसे 2 raised to 10 is 1024, राइट. एंड नीचे हो जाएगा रूट 2 कैन बी रिटन एज 2 raised to half. तो दिस बिकम्स लाइक दिस log 2. ये जो ऊपर 6 है वो वापस इधर आ जाएगा और जो ऊपर हाफ है वो यहाँ आ जाएगा. हाँ, नाउ यू कैन कैंसल. मैं अभी बोल रहा हूँ नाउ यू कैन कैंसल log 2 आई एम नॉट कैंसलिंग log बट आई कैन कैंसल log 2. तो 6 है और ये हाफ ऊपर जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा. तो आंसर विल बी 12. दूसरा मेथड माइट बी पॉसिबल, आप लोग को प्रॉब्लमेटिक लगे, लेकिन मैं दूसरा मेथड खाली समझा रहा हूं. दूसरा मेथड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 2? इट इज, आप एक काम करिए, ऐसे करिए, समझो. अब रूट 2 करोगे तो कैलसी पर ऐसा आएगा 1.4142 समथिंग, जो भी हो, राइट. अभी आप क्या करो, इनटू ये इक्वल टू प्रेस करो, राइट. अगर समझो मैं एक बार प्रेस करता हूं तो उसका मतलब स्क्वायर हुआ. 2 बार प्रेस किया, राइट, मतलब ये हुआ क्यूब. समझ में आया? मैं जितनी बार पास प्रेस करूं उतना, 3 बार प्रेस किए मतलब हुआ रेस टू 4. मैं वापस समझा रहा हूं, देखिए ये 2 है, उसका मैंने रूट किया, राइट. अभी मुझे इसको, दिस इज 1 रूट 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट 2, आपको दिख रहा है 1.4142. अभी इनटू आप कितनी बार प्रेस करोगे तो आपका आंसर 64 आएगा, वो आपको देखना है, राइट. याद रखना, जब मैं सेकेंड, अभी इक्वल टू देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. जैसे आप 11 बार प्रेस करोगे आपका आंसर 64 से एकदम क्लोज आ जाएगा, राइट. तो 11 बार प्रेस करना मतलब रेस टू 12 होता. प्लीज समझना, जितनी बार प्रेस किया इक्वल टू उससे एक ज्यादा होता है. मैं एग्जांपल दे देता हूं. समझो अगर मैं 5 इंटू एक बार करूं तो उसका स्क्वायर होगा, लेकिन 2 बार करूं तो उसका क्यूब होगा, और 3 बार करूं तो 625 हो जाएगा. 5 is 625. तो सिमिलरली अगर मैं रूट 2 को रेस टू 12 करूं तो मेरा 64 आ जाएगा, राइट. तो इम्प्लाइड, अभी ये क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो कुछ इस तरह से होगा. log 64 कैन बी रिटन एज log रूट 2 रेस टू 12 अपॉन log रूट 2. तो वापस आप 12 को आगे लेकर आओगे, 12 log रूट 2 अपॉन log रूट 2. आप ये कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12. तो आंसर फॉर 7th सम is 12. Clear? 8th, I think one of the most important sum, 8th, right. 8th sum के लिए right, 8th sum is log 1728 to root 3. Now मैंने बोला फर्स्ट ऑप्शन इज गो लाइक दिस, log 1728 अपॉन log 2 root 3. लेकिन ऐसा करने पर भी आप नहीं पहुंच पाओगे. वापस बोल रहा हूं, ये भी एक डिफिकल्ट स्टेप है, पहुंचने करते हैं, लेकिन पहुंचना मालूम क्या है, आपको ये सोचना है कि 2 root 3 रेस टू कितनी बार मैं कुछ करूं, कितनी बार, तो मैं 1728 तक पहुंचूंगा. वापस मैं 2 ऑप्शन दे सकता हूं, एक सॉल्विंग कैलसी मेथड और एक सॉल्विंग एग्जैक्टली जो बुक में रिक्वायर्ड है. मतलब प्रैक्टिकली ऑब्वियसली
चाहिए फाउंडेशन मतलब कैसे यूज कर दो, ठीक है, आंसर से मतलब है। तो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ सॉल्व करने का। फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, 1728 के फैक्टर्स 2 times it will be 864, 2 times it will be 432, 2 times it will be 216। अब जिसको पता है कि 216 क्या है फटाफट कैसे बोल देगा, क्योंकि 216 is 6 cube, राइट। 216 is nothing but 6 cube। तो भी मैं बता देता हूँ, 216 6 36 और 6, मतलब अगर मैं 1728 के फैक्टर्स दूँ, 1728 के फैक्टर्स दूँ तो इट्स 2 into 2 into 2 into 6 into 6 into 6, मतलब लॉजिकली 1728 is 12 into 12 into 12। समझ में आया ना? व्हाट इज 12? अगर मैं सिर्फ 12 का फैक्टर्स करूँ तो देखो, सिर्फ 12 का, एक 12 का 2 into 2 into 3, बराबर, सिर्फ 12 का। नाउ दिस इज 2 into 2 into 3 कैन बी रिटन एज √3 into √3। तो आप सोचो, आप 12 को क्या लिख सकते हो, सिर्फ एक 12 को क्या लिख सकते हो, ये सोचो, खाली एक 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो दिमाग में। I can write 2 square into √3 square। तो 12 can be written as 2 √3 square। तो सोचो ये कितने 12 है, 3। मैं एक 12 को ये लिख सकता हूँ, तो 3 12 को 2 √3 square into 2 √3 square into 2 √3 square। Therefore, this amounts to 2 √3 raised to 6। समझ में आया? Therefore, this will be log of 1728 upon log of 2 √3। Now, what can you write 1728 as? तो log 1728 को आप क्या लिख सकते हो, log 2 √3 raised to 6 upon log 2 √3, sorry 6, right? This will be 6 2 √3 upon log 2 √3। तो आंसर will be 6, right? तो आंसर will be 6। सॉरी, इसका आंसर नहीं, सॉरी, राइट, इसका आंसर इट इज 6। इसका आंसर तो ऑलरेडी पहले से 12 मार्क हो चुका है। क्लियर? और एक मेथड बता देता हूँ क्वेश्चन का। चल वो और एक मेथड बता देता हूँ। नाउ इजी, वन सेकेंड, सीधी कैसे करोगे, पहले 3 और उसका रूट, ये स्क्रीन पर आएगा, into 2 ये आएगा, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 √3। अभी आप कैसे भी करो, into कितनी बार करोगे तो आपका आंसर 1728 आना चाहिए। तो into 1 2 3 4 5 बार कराया, मतलब रेज टू 6 हुआ, तो आपका आंसर आ जाएगा 1728, राइट। तो कैसे पर आप करो, चलो मैं कैसे भी स्टेप्स लिख देता हूँ। फर्स्ट यू विल डू √3, कैसे पर करोगे ऐसा, √3 का जो वैल्यू आएगा आप into 2 करोगे, राइट। तो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, प्लस मैंने 3 का रूट किया और into 2 किया, तो मेरी स्क्रीन पर आया 3.4641 समथिंग, राइट। बस अब ये आपको क्या करना है, into 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार इक्वल टू किया, मतलब ये हुआ रेज टू 6। देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, राइट, मतलब ये हुआ मेरा रेज टू 6 और आंसर आ जाएगा। वापस एक बार, 3 का रूट into 2 into square cube 4 5 6 and answer. Clear? This was sum number 8. Sum number 9.
सम नंबर 9, दैट इज log 1 by 81 to the base 9, log 1 by 81 to the base 9, log 1 by 81 to the base, sorry, log 1 by 81 to the base 9. तो पहला स्टेप ऐसे कर दो, log 1 upon 9 square upon log 9. ठीक है, क्यों 9 स्क्वायर किया? क्योंकि 81 था. नाउ 9 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 9 स्क्वायर कैन बी रिटन 9 रेज टू माइनस 2. व्हाट्स द रूल ऑफ इंडाइसिस है कि a रेज टू माइनस m इज 1 अपॉन a रेज टू m. आप समझे? अगर आप माइनस में हो तो आप उल्टा कर दो. सिमिलरली उल्टा समझे, 1 अपॉन a रेज टू माइनस m, तो आपका a रेज टू m हो जाएगा. तो दिस विल बी 9 रेज टू माइनस 2, नीचे log 9, तो ऊपर हो जाएगा log माइनस 2 आगे ले लिया, log 9 कैंसिल, तो आंसर विल बी माइनस 2. ये सम नंबर कौन सा था? 9th का आंसर इज माइनस 2. नाइन्थ का आंसर इज माइनस 2. Now we come to sum number 10th. Tenth is log 0.0625 to the base 2. हाँ, ये बहुत हटके क्वेश्चन है क्योंकि बेस 2 है और अपर का नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर है. हाँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? लॉग ऊपर वाले को 625 अपॉन 10,000 लिख सकते हो और नीचे log 2 कर सकते हो. ये पार्ट समझा? मैंने एलिमिनेट किया जीरो को निकाला, पॉइंट के बाद 4 थे, 0 6 2 5, तो मैंने डिवाइड बाय 10,000 किया. नाउ log नीचे log 2 रखते हैं, ऊपर देखो ये क्या हो जाएगा. ऊपर आराम से समझना क्या हो जाएगा. अगर मैं 625 को कैंसिल करूं, 625 समझो, अगर किसी आपने सोचा मैं 25 के टेबल पे कैंसिल करूं तो ये 25 आएगा, और बाद में इसको मैं 25 के टेबल का तो 400 आएगा. जब वापस कैंसिल करूं 25 के टेबल में तो ये 1 आएगा और ये 16 आ जाएगा. तो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 16. 625 upon 10,000 is 1 upon 16. 1 upon 16 can be written as 2 raised to minus 4. और नीचे तो ऑलरेडी 2 है, वापस माइनस 4 आगे आ जाएगा, तो आंसर विल बी माइनस 4. हाँ, आप log 2 कैंसिल कर सकते हो. हमेशा याद रखना, यू कैन कैंसिल log 2, यू कैन कैंसिल log 2. तो दिस एंड्स योर फर्स्ट 10 सम्स. क्लियर हुआ? थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद दूसरा स्टार्ट करते हैं.